Hello students, in this video we will read our first chapter, The Fun They Had. We will try to complete first 5 paragraphs of the chapter. I hope you have listened the audio which is shared earlier. In the audio I have already discussed about the chapter. We have listened the introduction of the chapter. So here we start the text. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखती है. What is it here? It is the old book. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." This date indicates that Margie belonged to future time. She used to write a diary at the night time. So in her diary she wrote that Tommy had found a real book. कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है. रियल बुक मीन्स द बुक्स वी हैव इन टुडे टाइम. रियल बुक मीन्स द प्रिंटेड बुक. The book in which stories were printed on the paper. That is the real book here. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So we have come to know that Margie's grandfather's grandfather, that means great grandfather of Margie's, has told to his grandson that in the ancient times stories were printed on paper. कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि पुराने टाइम पर जो स्टोरीज थी वो प्रिंट होती थी पेपर के ऊपर. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. दे हेयर मीन्स टॉमी एंड मार्गी. उन्होंने पेजेस को टर्न किया विच अपियर टू बी येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स दे वर हैविंग मैनी फोल्ड्स और लाइन्स. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. As the both kids belongs to future time, so they are not well aware about the printed books. They have tally books. That's why they supposed the words would move, कि उनके tally books में words move करते हैं. But in the real book, the words were not moving. They were still, they were not moving. And then when they turned back to the page before, और जब वो पीछे वाले पेज पर वापस आते थे, it had the same words on it that it had when they read it the first time. उस पर वही words थे सेम जगह पर जैसे उन्होंने first time पर पढ़े थे. It means it was funny for them to read the book in which words were not moving as compared to their tally books. "Yee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess." So here Tommy's exclamatory word G is used here, and Tommy is saying कि this is a wasteful thing. कि एक बार अगर आपने बुक पढ़ ली और आप उसको फेंक दो. Our television screen must have had a million books on it. कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियंस ऑफ बुक्स हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. और उस पर बहुत सारी और भी बुक्स उसमें आ सकती हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे. एंड ही सेज दैट ही वुडंट थ्रो इट अवे, कि वो उसको फेंकेगा नहीं. गुड फॉर प्लेंटी मोर हेयर मीन्स अ लार्ज अमाउंट. सेम विद माइन, सेड मार्गी. शी वॉज 11 and hadn't seen any tally books as Tommy had. Margie was of 11-year-old while Tommy was of 13. तो ऑब्वियस था कि मार्गी एज में कम है तो उसने उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. टैली बुक्स मीन्स बुक्स ऑन टेलीविज़न स्क्रीन. शी सेड, "वेयर डिड यू फाइंड इट?" वो पूछ रही है कि इसको कहाँ से बुक मिली. "इन माई हाउस." ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. टॉमी वॉज बिजी इन रीडिंग द बुक, सो ही जस्ट पॉइंटेड. वो इशारा कर देता है. इन माई हाउस इन द एटिक. एटिक इज़ अ प्लेस जस्ट बिलो द रूफ विच इज़ कैन बी यूज एज अ स्टोर रूम. वट इज़ इट्स अबाउट? नाउ मार्गी इज आस्किंग कि किसके बारे में है बुक. एंड टॉमी रिप्लाई, इट्स अबाउट स्कूल.
Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Scornful here means to show that you think is worthless. That means to show disrespect for something. That this word here indicates that Margie doesn't like to go to school. कि स्कूल के बारे में लिखने में ऐसा क्या है? आई डिसलाइक स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. हमेशा से ही उसको डिसलाइक करती है स्कूल को वो. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. लेकिन अब तो ज़्यादा करने लगी है. द मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल हेयर मीन्स रोबोटिक टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. कि ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट ले जा रहा है मैकेनिकल टीचर. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully. Shaken her head sorrowfully, that means she expressed disapproval. कि जब तक उसकी मदर डिसअप्रूवल एक्सप्रेस नहीं करती, काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लेती, तब तक वो इसी तरह से टेस्ट में वर्स परफॉर्मेंस देती रहती है. काउंटी इंस्पेक्टर इज हेयर द पर्सन हु हैज़ कम टू रिपेयर द रोबोट. He was a round little man. Here description of the county inspector has been given. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. So the man was round. Round here means he was healthy, of small height man, having a red face, and he also brought box of tools in which dials and wires were there. कि जो भी टूल्स नेसेसरी थे एक रोबोट को रिपेयर करने के लिए वो सारे उसके पास थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. देन टुक द टीचर अपार्ट. सो हेयर वी हैव कम टू नो ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. दैट मीन्स ही वॉज अ काइंड सॉर्ट ऑफ पर्सन. और फिर टीचर को वो अपार्ट मीन्स असाइड, एक तरफ लेकर गया. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. पुट इट टुगेदर हेयर मीन्स उसको रिपेयर करना. कि मार्गी को ये लग रहा था कि उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना नहीं आएगा. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. लेकिन वो जानता था कि उसको कैसे ठीक करना है. एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन. एंड ही टुक अराउंड 1 hour and the robot was again perfect. It was a large, black and ugly. The robotic teacher was of large size. It was of black color and was not attractive. It has a big screen on which all the lessons were shown. बड़ा सा स्क्रीन था जिस पर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे. and the questions were also asked. That wasn't so bad. ये इतना भी बुरा नहीं था. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and टेस्ट पेपर्स. कि उसको जो सबसे बुरी चीज़ लगती थी दैट वाज द स्लॉट. स्लॉट हेयर मीन्स अ गिवन प्लेस, टाइम और पोजीशन. कि वो जगह जहाँ पर उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे वो उसको सबसे बुरा लगता था. शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड. उसको वो एक पंच कोड में लिखने पड़ते थे. पंच कोड यू हैव ऑलरेडी डन कोडिंग इन योर 8th क्लास इन कंप्यूटर सब. सो उसको जो भी लिखना होता था उसको वो कोडिंग में लिखती थी. They made her learn when she was 6 years old. और कोडिंग उसने कब सीखी थी? When she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. And without taking much time, जो robotic teacher था वो marks को काउंट कर देता था. The inspector had smiled after he was finished. जब इंस्पेक्टर काउंट इंस्पेक्टर का काम ख़त्म हो गया उसने फिर से स्माइल किया मार्गी को देखकर. एंड पैटेड मार्गी's head. पैटेड हेयर मीन्स थपथपाना. जब आप किसी को प्रेज कर रहे हो, शाबाशी जब टीचर देती है, देन टीचर पैट ऑन योर बैक. ही सेड टू हर मदर. अपनी मदर को मार्गी की मदर को वो कहता है इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. कि मिस्टेक लिटिल गर्ल की नहीं है. लिटिल गर्ल इज हेयर मार्गी. मिसेस जॉन्स इज द मदर ऑफ मार्गी. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. गियर्ड हेयर मीन्स adjusted in a particular level or set in a particular level. That means geography sector of the robotic teacher was set up a little too quick. उसकी स्पीड
जो थी वो जल्दी सेट की गई थी. दोज थिंग हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि उसने स्पीड को स्लो डाउन कर दिया है एक 10-year चाइल्ड के लेवल के अकॉर्डिंग. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और अगर ओवरऑल देखें तो उसकी जो प्रोग्रेस रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से वो मार्गी के सिर पर पैटिंग करते हैं. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. अब मार्गी जो थी वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई. शी वॉज फीलिंग सैड. वाई? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. एक बार टॉमी के टीचर को 1 month के लिए वो ले गए थे. वाई? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि टॉमी के रोबोटिक टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था. वो सेक्टर जो था वो पूरे तरीके से हिस्ट्री पार्ट को भूल गया था. ब्लैंक्ड आउट here means forget. So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसीलिए वो टॉमी को कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर will be explained in next video.